Hello students, how are you all? In previous class, I was teaching you about the digestion of food in the oral cavity. Okay. Today we'll start a new topic of chapter 16. That name is digestion of food in the stomach. Okay. Let's start. The bolus enter into the stomach through the cardiac orifice that is guarded by cardiac sphincters. Okay. In previous class, I have told you mucus in saliva that provides help for lubrication and adhering masticated food particles into bole or bolus. Okay, bolus passes into the pharynx, from pharynx to esophagus and from esophagus to stomach. Okay, तो आप समझें कि जो bolus है, bolus passes from esophagus to stomach. Okay, the bolus enter into the stomach through the cardiac orifice. You know very well, stomach has four parts. Okay, upper part of stomach is known as cardiac, then after fundus, then after body, that is main region of stomach, and at last last जो part होता है, it is called pyloric. Okay, so there are four parts of stomach: cardiac, fundus, body and pyloric. Okay, esophagus opens into the cardiac region, that is upper part of stomach. Okay, तो दोबारा एक बार देख लें आप. The bolus enters into the stomach through the cardiac orifice. Okay, that is guarded by cardiac sphincters. ठीक है, कि जो ये cardiac orifice है, it is guarded by cardiac sphincters. ठीक है, कि it regulate the passage of bolus from esophagus to stomach. Okay, फिर क्या है कि जब फूड कहाँ पहुंच जाएगा, into the stomach, तो क्या हो रहा है, contraction and expansion of muscles of the walls of stomach. I have told you there are some finger-like projection occurs in the stomach. Okay, these structures are known as rhugae, gastric rhugae. Okay, when bolus comes into the stomach, then these gastric rhugae provides help to expansion of stomach. Okay, तो अब क्या हो रहा है, when bolus comes into the stomach, contraction and expansion of muscles of the wall of stomach bring about a movement that is called churning movement. ठीक है, क्या नाम है बेटा उस movement का, churning movement. Okay, which provide help, जो churning movement है, which provide help for mixing the food with gastric juice. You know very well, inside stomach there are gastric glands. Okay, mainly there are three types of gastric glands that present in stomach. First, cardiac gastric gland, second, fundus or oxyntic gastric gland, third is pyloric gastric gland. Okay, these gastric glands secrete a juice, acidic juice, that is called gastric juice. Okay, gastric juice is a mixture of different kinds of chemical substances. Okay, out of these chemical substances, some are enzymes that provide help to digest food particles. Okay, तो आप देखें, gastric juice is a mixture of HCl, hydrochloric acid, pepsinogen, prorenin, lipase and mucus. For your kind information, this one prorenin is in inactive enzymes. Okay, it becomes active in the presence of HCl into the renin, and renin digests casein protein that occurs in a milk. ये पढ़ाऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है, लेकिन आपको इतना समझना है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोरेनिन, it occurs in infant stage, छोटे बच्चों में प्रेजेंट होता है ये. ठीक है, it is not present in adult. Okay, फिर आप देखें, stomach store food 3 to 4 hours when food mixes with the acidic gastric juice. बताया भी जस्ट आपको मैंने कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, they secrete gastric juice when food mixes with the acidic gastric juice. Now it is called chyme. क्या कहलाएगा फिर बेटा, वो काइम कहलाता है फूड वो. ठीक है, जो मिक्स हो गया एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ. ठीक है, फिर आप देख रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, दे कंटेन थ्री स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, फर्स्ट म्यूकस नेक सेल्स. ठीक है, नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है, म्यूकस नेक सेल्स
secrete a viscous fluid that is called mucus. Okay. Second is peptic or chief cells or zymogen cells. Okay, they secrete pepsinogen. Okay, and pepsinogen occurs in an inactive form. It becomes active in the presence of hydrochloric acid. ठीक है, pepsinogen converts into pepsin and pepsin digests protein. Okay, parietal और oxantic cells they secrete hydrochloric acid. Okay, और इसी HCl की वजह से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं दे बिकम एसिडिक. ठीक है, और कुछ जो एंजाइम्स होते हैं दे शो देयर एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. ओके, intrinsic factors also essential for absorption of vitamin B12. Okay, vitamin B12 or cobalamin. Okay, for its absorption some intrinsic factors are also essential. Mucus and bicarbonate ions as HCO3 minus. ठीक है कि बेटा आप जो म्यूकस और जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं दे ऑल्सो प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस. किसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर. ओके, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल epitheliums फ्रॉम कंसंट्रेटेड HCl. ठीक है, ये आपको समझना है मेन. आपको पता है कि जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर जो ऑक्जेंटिक और पैरेटल सेल्स होती हैं दे सिक्रेट कंसंट्रेटेड HCl. अब क्या है कि ड्यूडेनम को बचाना है. ठीक है, ड्यूडेनम के पास जो ब्रूनर ग्लैंड्स होती हैं दे सिक्रेट म्यूकस. ठीक है, अब स्टोमक को भी बचाना है किससे? फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड HCl. ठीक है, तो उस समय क्या होता है बेटा कि जो म्यूकस है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, दे प्रोटेक्ट स्टोमक वॉल फ्रॉम कंसंट्रेटेड HCl. ठीक है, समटाइम्स नो यू लिसन अबाउट पेप्टिक अल्सर. ठीक है, कि भाई स्टोमक अल्सर हो गया है. ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, जो अल्सर होते हैं ना, जो घाव बनते हैं वो किसकी प्रेजेंस में बनते हैं बेटा? HCl की प्रेजेंस में. ठीक है, कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन तो कम हो गया. ठीक है, और ज्यादा सिक्रेशन किसका हो रहा है? HCl का. इट कॉजेज अल्सर इन स्टोमक. ठीक है, तो वैसे जो प्रोडक्शन हो रही है स्टोमक की वो कौन कर रहा है? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन. ठीक है, तो ये आपको समझना है. अब क्या है, अब हमें पढ़ना है बेटा रोल ऑफ एंजाइम्स दैट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस. ओके, just I have told you chief और zymogen cells secrete a proenzyme and name of this enzyme pepsinogen. Okay, this pepsinogen occurs in a inactive form. किस फॉर्म में होता है बेटा? ये inactive form के अंदर. It becomes active in the presence of HCl. ठीक है, और एक्टिव फॉर्म कौन सी हो गई है इसकी? पेप्सिन. दिस वन इज एक्टिव फॉर्म. ठीक है, एक तो ये आप ध्यान देंगे. दूसरा क्या होता है बेटा? ये फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट इज दैट HCl provide the acidic pH 1.8. ठीक है, 1.8 और 1.7. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है. 1.8 for activity of पेप्सिन. किसकी एक्टिविटी के लिए बेटा? पेप्सिन एंजाइम की एक्टिविटी के लिए. ठीक है, तो आप समझें कि जो पेप्सिनोजन है इट इज सिक्रेटेड बाय चीफ सेल्स
it occurs in inactive forms, okay, it becomes active in the presence of HCl, ठीक है। पेप्सिन कन्वर्ट किसमें हो गया, पेप्सिन के अंदर। फिर क्या हो रहा है कि HCl provides the acidic pH about 1.8 for activity of pepsin, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्ट कौन कर रहा है बेटा, प्रोटीन को, पेप्सिन। पीएच लेवल क्या है, 1.8, ठीक है। और जब पेप्सिन इसको डाइजेस्ट करेगा बेटा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को, ठीक है। बताया था आपको मैंने कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस शो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू दी सिंपल फूड, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं, ओके, दे कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड मैटर्स बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जो प्रोटीन है वो किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जब पेप्सिन इसके ऊपर अपना एक्टिविटी शो करेगा तो इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बताइए, पेप्टोन्स के अंदर। पेप्टोन्स क्या हैं, पेप्टाइड्स होती हैं, ठीक है, समझे आप इसे, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि जो चीफ सेल्स होती हैं, चीफ सेल्स सिर्फ जो एक प्रोएंजाइम था कौन सा, पेप्सिनोजिन, ठीक है, सिर्फ उसको सिक्रेट नहीं करती हैं, दे ऑल्सो सिक्रेट्स वन अनोदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड प्रोरेनिन। क्या नाम है उसका बेटा, प्रोरेनिन, ओके। दिस प्रोरेनिन एंजाइम कन्वर्ट इनटू दी active enzymes that is called renin in the presence of HCl, okay. Chief cells also secretes prorenin, okay, which convert renin in the presence of HCl, ठीक है। तो अब यहां पर समझें, प्रोरेनिन यहां पर आ गया बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये कौन सी स्टेज है, इनएक्टिवेट स्टेज, इनएक्टिवेट फॉर्म है ये, ठीक है। ये प्रो एंजाइम है, प्रोरेनिन, ठीक है। इट बिकम्स एक्टिव, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो आप यहां लिख देंगे एक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब हमें जानना है व्हाट इज रोल ऑफ रेनिन ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। रेनिन hydrolyzes the soluble milk protein that is called कैसिन। मिल्क के अंदर बेटा जो प्रोटीन पाई जाती है, नाम क्या उसका, सोल्यूबल प्रोटीन का कैसिन, ठीक है। तो जो रेनिन एंजाइम्स होता है बेटा, इट प्रोवाइड्स हेल्प टू डाइजेस्ट कैसिन प्रोटीन, ठीक है। और जब ये कैसिन प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, तो कन्वर्ट कर देगा उसको पैराकैसिन के अंदर और वे प्रोटीन के अंदर, ठीक है। तो यहां देख लें कि ये तो क्या, कैसिन, ठीक है, सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन, सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन। एंजाइम या कौन सा लिख देंगे बेटा अपन, रेनिन, ठीक है। कन्वर्ट किसमें हो गया ये,
पैरा कैसीन प्लस वे प्रोटीन। ठीक है, ये रोल है रेनिन एंजाइम्स का। ठीक है, कि कैसीन को कन्वर्ट किसमें कर दिया, पैरा कैसीन और वे प्रोटीन के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, वहन पैराकैसीन जो किससे बनी है, कैसीन प्रोटीन जब डाइजेस्ट हुई है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हुई है किसकी प्रेजेंस में, रेनिन की प्रेजेंस में, देन कैसीन प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू पैराकैसीन एंड वे प्रोटीन। ओके, नाउ पैराकैसीन कंबाइंस विद कैल्शियम आयंस। ओके, और ये क्या कहलाएगा, कैल्शियम पैरासिनेट। ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा, कैल्शियम पैरासिनेट। तो आपको समझना ही है। ठीक है, पैराकैसिनेट। ठीक है, तो इसमें आप देख लेंगे पैराकैसीन प्लस कैल्शियम। ठीक है, क्या बना दिया, कैल्शियम पैरासिनेट, कैल्शियम पैरासिनेट। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो ये कैल्शियम पैरासिनेट बनी है, कैल्शियम पैरासिनेट्स। ठीक है, तो कैल्शियम पैरासिनेट्स के ऊपर कौन वर्क कर रहा है बेटा, कैल्शियम पैरासिनेट के ऊपर वर्क कर रहा है पेप्सिन। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, कौन वर्क कर रहा है, पेप्सिन। ठीक है, और जब पेप्सिन काम कर रहा है तो क्या बन जाएगा, प्रोटीएज प्लस पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो यानी कि जो कैल्शियम पैरासिनेट्स है वो कन्वर्ट किसमें हो गया, प्रोटीएज के अंदर, पेप्टोन्स के अंदर, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लीजिए बेटा कि जो कैसीन है, कैसीन डाइजेस्ट किसकी प्रेजेंस में हुई थी बेटा, रेनिन की उसमें। ठीक है, तो क्या बना था, पैराकैसीन और वे प्रोटीन। ठीक है, फिर बताया मैंने आपको कि जब पैराकैसीन बाइंड होगा साथ में इसके कैल्शियम के, ठीक है, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम पैरासिनेट। क्या बन गया, कैल्शियम पैरासिनेट। ठीक है, अब जो कैल्शियम पैरासिनेट है, ठीक है, ये कैल्शियम पैरासिनेट किसकी प्रेजेंस में, पेप्सिन की प्रेजेंस में। ठीक है, ये कन्वर्ट किसमें होगा, प्रोटीओजेज के अंदर, पेप्टोन्स के अंदर और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। ठीक है, ये डाइजेशन चल रहा है बेटा किसके अंदर, इनटू द स्टोमक। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो कंटेन लाइपेजेज एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम था, लाइपेजेज एंजाइम्स। ठीक है, तो समझें, gastric juice also contain lipases enzymes। ठीक है, और जो lipases enzymes होते हैं बेटा, they are responsible to digest fat molecules। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे फैट, यहाँ लिख देंगे लाइपेजेज एंजाइम्स। ठीक है, और कन्वर्ट किसमें हो गया, मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड। ठीक है, ध्यान दें, फैट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसकी प्रेजेंस में, लाइपेजेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, कन्वर्ट किसमें हो गया, मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड, एक मिनट जी, प्लस फैटी एसिड। ठीक है, होता क्या है बेटा कि मेनली जो स्टोमक होता है ना, स्टोमक लैक्स इमल्सिफाइंग एजेंट्स फॉर फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो इमल्सिफिकेशन होता है फैट का बेटा, इट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस। ठीक है, बताया था आपको मैंने बेटा कि जो लिवर होता है, लिवर हैज टू लोब्स, राइट लोब्स और लेफ्ट लोब्स। ठीक है, दीज लोब्स आर नोन एज हेप्टिक लोब्स। ओके,
Hepatic lobes contain hepatic cells. Hepatic cells secrete a juice that is called bile juice. Bile juice is stored in gallbladder. ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि जो bile juice है, bile juice contain bile pigments like bilirubin, biliverdin, salt, cholesterol. ठीक है, तो bile juice के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है बेटा कि bile juice provides help for emulsification of fat, but it does not contain enzymes. कि bile juice के पास कोई enzymes नहीं होते हैं, but it provides help for emulsification of fats. ठीक है, और जो फैट होता है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म फैट, इट्स ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड मिसेल्स. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बाद में. ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ना डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तब ये पढ़ाऊंगा आपको मैं. ठीक है, तो अभी आप समझें कि जो स्टोमक होता है, स्टोमक लैक्स इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर फैट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स नहीं होते हैं स्टोमक के अंदर. ठीक है, एक सिर्फ गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेजेज एंजाइम्स. ठीक है, जिसका फंक्शन बता दिया आपको मैंने कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फैट की, it converts into monoglycerides and fatty acids. Okay, in the next class we'll study about digestion of food in the small intestine. Okay, thank you.